Today we are living in a generation where everyone chooses comfort over everything. पर आपने खुद का फ्यूचर लिखने का सोचा. You left your house at just 19 years old. You see, I have started my journey in the year 1968. क्या क्या challenges इंडियन कॉफी हाउस ने फेस किया था? It was very difficult to run the society at that time also. In the year 1981, I have taken over the charge of Indian Coffee Workers Cooperative Society. बहुत कुछ हमने कर लिया. Indian Coffee Workers Cooperative Society Jabalpur started with the small capital 1,365. You told in 1981 you took the administrative head position in Indian Coffee House. And आपने बोला कि वो एक ऐसा वक्त था जहाँ पे इंडियन कॉफ़ी हाउस को लॉस मेकिंग बोला गया था. तो सर आपने ऐसे कैसा डिसीजन ले लिया कि नहीं मैं ये पोजीशन लूँगा? I thought it is do something for the betterment of the people. ये brotherly live होना चाहिए क्योंकि हमारा एक ही मकसद था सोसाइटी को अच्छी तरह से खड़ा करना. वो तो फैमिली साथ देना चाहिए, इसलिए तो फैमिली का साथ में अपन को काम कर सकता है. यहाँ के हर एक लोग, उनके फैमिलीज, उनके एम्प्लॉयज़, सब लोग आपको बहुत प्यार, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं. सब लोग मेरे को प्यार करता है, मैं भी उनको प्यार करता है. हमने पूरा सुविधा उनको दे के रखा है. हमेशा मेरे को फ़ोन करके उनको जितना भी डिफ़िकल्टी है बोल सकता है, मैं सुनता है, हम उसको निपटारा भी करता है. थोड़ा फ्रेंडली रिलेशनशिप हम हमेशा बनाए रखा है क्योंकि फ्रेंडली रिलेशनशिप के बिना वही इंस्टीट्यूशन इतना बढ़िया चलना. How do you recruit employees here? We are recruiting employees, those who have bringing the people of the working in the institution. 20 स्टेट में हम लोग इसका संचालन कर रहे हैं. हम लोग जबलपुर में बैठ के ये काम कर रहे हैं. So can you tell me how does Indian Coffee House get its publicity? Most publicity is most important. Hello and welcome to today's interview. Today we are speaking to a person who has rewritten history. A person who has shown that a cooperative society can be run profitably while supporting thousands of workers. And he has also demonstrated what heights can a society reach when it is guided by the right vision. Please welcome Dr. O.K. Rajagopalan, the president of Indian Coffee House. And today is a very special day because it marks his 77th birthday. And it is our privilege to speak with him, to share ideas and thoughts. Thank you so much, sir, for joining us today. Okay. And happy birthday to you. Thank you. So to begin this interview, my first question is about your journey, how ICIT started. So today we are living in a generation where everyone chooses comfort over everything. आजकल सब कुछ comfort के पीछे ही भागते हैं. पर आपने खुद का फ्यूचर लिखने का सोचा. You left your house at just 19 years old and you struggled on your own and obviously overcame it. So can you tell me what motivated you for this journey? What was the driving force behind this? You see, I have started my journey in the year 1968. At the age of 19, I came from Kerala to Jabalpur to search an opportunity of a job. I got a job in Indian Coffee House in the year 1968. 1st May, I have started the work of Indian Coffee House. Indian Coffee House, after starting the work, spent a lot of things regarding the work and work. I studied a lot of from the at that time when the work started. 1968 was very poor for the Indian Coffee House because already started with this institution 10 years back. At that time, it was very poor stage. But it was continued in the year 1981 up to. When I have taken over the charge of Secretary of Indian Coffee Workers Cooperative Society, बहुत कुछ हमने कर लिया क्योंकि हमने सोचा है ये इंडियन कॉफ़ी हाउस का लिवलीहुड बहुत बढ़िया होना चाहिए. सबको सब काम का बारे में जानकारी होना चाहिए. We want to support the people of their livings. This was how I started my journey up to in the year 1981. So अभी हम आपके जर्नी सुने, but we also want to hear the journey of Indian Coffee House. And पहले कुछ वक्त
कुछ साल में क्या क्या चैलेंजेस इंडियन कॉफ़ी हाउस ने फेस किया था और वो चैलेंजेस कैसे आप लोग ओवरकम किए? देखिए, मैंने बताया 1958 में इंडियन कॉफ़ी वर्कर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी का 13 सोसाइटी बनाया with the help of Pandit Jawaharlal Nehru and A.K. Gopalan and some of the union leaders. They started different places in the coffee houses in the different area. Kerala, Chennai, Pondicherry, Bellary, Bangalore, Nagpur, Bombay, Jabalpur, Delhi, Lucknow, West Bengal. But due to lack of supervising work and some of the problem, they have, some of the society has lost their lives, and we now at present 6 societies working under this cooperative movement, Indian Coffee Workers Cooperative Society movement. This was started very simply. Indian Coffee Workers Cooperative Society Jabalpur started with the small capital 1,365 amount, and they have pillars of the society. They have started with this society with a very minimum amount. It was very difficult to run the society at that time also. Then they have struggled a lot to move up to these heights. Then in the year 1981, I have taken over the charge of Indian Coffee House. I thought it is do something for the betterment of the people, betterment of the members of the society. That's why it is started with a pleasant manner. At this stage, I brought it. You made it a big success. Success. So that is my next question also. You told in 1981 you took the administrative head position in Indian Coffee House. And आप ही ने बोला कि वो एक ऐसा वक्त था जहाँ पे इंडियन कॉफ़ी हाउस को लॉस मेकिंग बोला गया था. तो सर आपने ऐसे कैसा डिसीजन ले लिया कि नहीं मैं ये पोजीशन लूँगा, मैं सबको दिखाऊंगा कि इंडियन कॉफ़ी हाउस लॉस मेकिंग नहीं प्रॉफिट मेकिंग है? वो डिसीजन लेने के लिए बहुत गट्स चाहिए होता है, बहुत हिम्मत चाहिए होता है. सर आप वो कैसे किए? ऐसा नहीं है, उसी समय हमारा ब्रांचेस भी कम था. उसी समय 11 ब्रांचेस था, करीब 228 एम्प्लॉइज़ था. वो भी हमारा दिमाग में है. उसी समय हमने ये सोचा है कि सबको साथ मिलके, सबको एकजुट होके लेके चलना चाहिए. वो ब्रदरली लिव होना चाहिए, क्योंकि वो फैमिली अफेयर्स का साथ में ये जीना चाहिए. उसी आधार पर हमने उसको फॉलो किया. उसी आधार पर फॉलो करने के बाद में सबको ये साथ मिलकर हम लोग काम शुरू कर दिया. 81 में सेक्रेटरी बनने के बाद में मैं कई डिसीशंस ले लिया. कुछ तो स्ट्रॉन्ग डिसीशंस हो गया था, कुछ तो सिंपल डिसीशंस भी हो गया था, क्योंकि हमारा एक ही मकसद था, सोसाइटी को अच्छी तरह से खड़ा करना. वो हमने मैक्सिमम लेवल पर हमने कर लिया था. सर इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के एक प्रेसिडेंट बनना बहुत चैलेंजिंग होगा. इसके चैलेंजेस, इसके स्ट्रेस वो सब होंगे, बट उससे भी ज़्यादा चैलेंजिंग, उससे भी ज़्यादा डिमांडिंग जॉब होता है एक फादर बनना. तो हाउ डिड यू मैनेज बोथ ऑफ देम, बीइंग द प्रेसिडेंट, बीइंग द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ इंडियन कॉफ़ी हाउस एंड बीइंग अ फादर, एंड यू डिड इट सो ग्रेसफुली? व्हाट वाज योर सीक्रेट बिहाइंड इट? एक्चुअली और सोचेगा तो अपन को दोनों काम इजीली हो सकता है. कैसे है कि हम लोग एक साथ एकजुट होकर काम करने वाला सब लोग हैं. हमारा फैमिली भी इसका साथ दे दिया है. वो तो फैमिली साथ देना चाहिए, इसीलिए तो फैमिली का साथ में अपन को काम कर सकता है. whereas in the meaning of running a society, running an institution, थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंस डिसीजंस भी लेना चाहिए. कोऑपरेटिव मूवमेंट है, इवन आफ्टर वी वांट टू डू सम इम्पोर्टेंट इंडिपेंडेंट डिसीजंस टू इम्प्लीमेंट इट. स्ट्रॉन्ग डिसीजन, स्ट्रॉन्ग अपीयरेंस, एवरीथिंग नीडेड. सर अभी हम आपके इंडियन कॉफ़ी हाउस फैमिली के बारे में बात करना चाहते हैं.
यहाँ के हर एक लोग, उनके फैमिलीज, उनके एम्प्लॉयज़, सब लोग आपको बहुत प्यार, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। सर, आपके हिसाब से उसका सीक्रेट क्या है और आपको कैसा लगता है वो प्यार और वो रिस्पेक्ट पाने पर? ऐसे सब लोग मेरे को प्यार करता है, मैं भी उनको प्यार करता है क्योंकि उनका कोई भी डिफ़िकल्टी हम सुनने के बाद में उनको आराम से उसको निपटा देंगे, क्योंकि किसी को भी कोई तकलीफ इसका अंदर से नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो काम ढूंढ के आया, वो दूसरा जगह पर काम कर रहा है, उनका शायद फैमिली नहीं होगा, उनको देखने का कर्तव्य मेरा है। क्योंकि मेरा सोसाइटी का बीइंग एन हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, आई वांट टू डू सच थिंग्स फॉर द पीपल ऑफ द वर्किंग क्लास। हमने पूरा सुविधा उनको दे के रखा है। हमेशा मेरे को फ़ोन करके उनको जितना भी डिफ़िकल्टी है बोल सकता है, मैं सुनता है, वो तुरंत हम उसको निपटारा भी करता है। वो कल के लिए नहीं रखता है कभी, क्योंकि वो सब उसी समय अपन कर लेता है। क्योंकि कल के लिए रखेगा तो उनका दिमाग में ये आएगा, क्योंकि कल करेगा नहीं, तुरंत कर लेता है। वो थोड़ा फ्रेंडली रिलेशनशिप हम हमेशा बनाए रखा है, क्योंकि फ्रेंडली रिलेशनशिप का बिना वही इंस्टीट्यूशन इतना बढ़िया चलना। ये दूसरी एक चीज़, हम 20 स्टेट में हम लोग इसका संचालन कर रहे हैं। हम लोग जबलपुर में बैठ के ये काम कर रहे हैं। वो सारे मेंबर है तो भी उनका दिल में, मन में कुछ, देयर विल बी सम प्रॉब्लम दैट वी वांट टू नो। आई एम ऑलवेज टेलिंग आवर मैनेजमेंट स्टाफ टू, आप उनका साथ में जितना ये प्रॉब्लम्स है, टू हियर इट and solve it. If any problem is there, I am here. I am always with the employee of the institution. Till this time, I am doing with them. I am always with them. I am. That's why the people are very much love me. Yes. And I am also love them. That is so true. And I believe that Indian Coffee House employees and their families are very lucky to have you as the president, because you are a person who understands them in and out. So, very lucky to have you. So my next question to you is, so can you tell us what is the criteria you choose or you see when you're choosing employees? How do you recruit employees here? We are recruiting employees, those who have bringing the people of working in the institution, bringing the people and interviewed with myself directly. And I am hearing her family affairs. If any family problem, also I am hearing it, and why they came here and why they are working with us. इसलिए थोड़ा सा उनको मन में ये लगेगा, क्योंकि हम उनका घर के बारे में भी पूछा है, इसलिए तो उनको अच्छा से हमेशा उनका मन में हम लगाव लगा रहता है। कुछ लोग तो ज़रूर ये छोड़ के जाता है, छोड़ के जाने के बाद में भी अफसोस करता है, हम एक बड़ा इंस्टीट्यूशन से हाथ जोड़ दिया। सर, अभी हम देख रहे हैं कि नेशन में, पूरा इंडिया में बहुत सारे कैफ़ेज़ ओपन होते रहते हैं। अभी जबलपुर का भी लेंगे तो बहुत सारे कैफ़ेज़ ओपन होते रहते हैं। वो 1 साल 2 साल चलते हैं, फिर बंद हो जाते हैं। बट इंडियन कॉफ़ी हाउस सालों से चलता आ रहा है और फिर भी लोगों को और प्यार ही आता है, क्योंकि यहाँ का टेस्ट, यहाँ पे सब कुछ यूनिक रहता है। तो कैसे आप लोग अभी भी लोगों के साथ रिलेवेंट रह रहे हैं? देखिए, एक इंडियन कॉफ़ी हाउस एक पेक्यूलियर इंस्टीट्यूशन है। यहाँ हमारा मुख्य मकसद है साफ़ सफाई और ये नीट एंड क्लीन के साथ में अच्छा गुणवत्ता के साथ में सामान बना के दे दें। हमेशा किचन बढ़िया रखे। किचन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉफ़ी हाउस और एनी इंस्टीट्यूशन, होटल। बाकी एम्प्लॉय भी साफ़ सफाई रहे, क्योंकि कस्टमर को जो सप्लाई करता है उनको भी अच्छा तरीके से सामान सप्लाई करें, उनका हमेशा फीलिंग समझ के काम करें। यह सब होने के बाद ऐसे कस्टमर को हमेशा जल्दी से जल्दी उनको सामान अपन कस्टमर को पहुंचाए। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ एन एम्प्लॉई, दैट दे आर डूइंग वेरी वेल। देन वी आर टिल डेट, I last 68 years
society have no complaint with any food adulteration case and food complaint to anybody else. Yes. So this is the time where marketing is playing a big role. But we see that Indian Coffee House is not making any big noise, but it is still known by everyone. It has that publicity. So can you tell me how does Indian Coffee House get its publicity? Indian Coffee House, we are not giving any publicity in the marketing. We are thinking mouth-to-mouth publicity. We are very important to the people and we are enjoying it. Everybody, wherever we are opening Indian Coffee House, we are not giving any publicity. Only opening today, only that only we are providing, and never giving any publicity to. After taking food, the customer itself is publicity everywhere. Yes. So Indian Coffee House has a very, very unique taste. It's sambar, cutlet, masala dosha, and the special cup of coffee. That taste just remains in our heart. It never goes away. So can you tell us what is the secret behind this unique taste? Actually, our is a system to training the people from young to seniors also. जो पहले आता है उनको उसी तरीका ट्रेनिंग देता है. 1-2 साल का बाद में उनको वो सामान कैसे बनाता है, सामान कैसे बना के देना है, इसके लिए ट्रेनिंग देता है. और टेस्ट कैसे आना है उसी का पूरा इम्पोर्टेंस उनको समझा देता है. उसी तरीके से वो सांबार बनाता है और आपने बताया कटलेट भी बनाता है. मसाला डोसा का रेसिपी भी उसी समय से टाइप से बनाता है. हम लोग इसको कई कस्टमर भी आके हमसे पूछता है कैसे बनाता है, हम लोग उनको भी समझा देता है. ऐसा नहीं है यहाँ हमारा सीक्रेट हम लोग अपना हाथ में नहीं रखता है. वी आर पब्लिसिटिंग इट टू द कस्टमर्स आल्सो बिकॉज दे नोस इट. चटनी सबको पसंद है. चटनी नारियल का चटनी होने की वजह से उनको अलग टेस्ट मालूम हो जाता है. ये सब हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है. ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग हमेशा देता रहता है. वो जबलपुर इसका सेंटर है. जबलपुर में हम लोग हर 14 ब्रांच है. वो 14 ब्रांच में हम लोग ट्रेनिंग के लिए यहाँ जबलपुर में बुलाता है, उनको ट्रेनिंग देता है. ट्रेनिंग देने के बाद में वो अच्छा बन जाता है. इसलिए ये टेस्ट में कहीं भी जितना भी कॉफ़ी हाउस है हमारा 189 ब्रांचेस है, कहीं भी कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं पड़ेगा. सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इंडियन कॉफ़ी हाउस को 189 ब्रांचेस हैं एंड ओवर 10,000 वर्कर्स हैं. सो माय क्वेश्चन इज़ हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस? आप अभी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बस नहीं है, क्योंकि आप ही ने बोला कि आप सब एम्प्लॉयज़ को जानते हैं, उनके दुख दर्द सब जानते हैं. सर आप कैसे कर लेते हैं ये? What I tell you, it is a imagination, because I am feeling it better, because everybody is whenever necessary for the people's need, they are asking me different type of question. When study is necessary, people will be ask me what they want to do study. और दूसरा तरीके से उनको कहीं भी जाना है, उनको पढ़ाना है, पढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए. और वो इसलिए तो ये 10,000 आदमी हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है हमारे लिए देखने वाला ये कोई है. हम भी है, हमारा मैनेजिंग कमेटी भी है, इसके लिए बिल्कुल ख्याल रखता है. हमारा जितना ब्रांच चलाने में सक्षम है, वो बाकी हमारा ऑफिस स्टाफ है. ऑफिस स्टाफ भी देखता है ये कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, वो पूरा जानकारी मेरे को मिल जाता है. क्योंकि एम्प्लॉई को जानता है, क्योंकि हमारा जॉब सुरक्षित है. हमने कई तरीके से उन लोग को स्कीम में बना के रखा है. हमारा यहाँ लोग सब 7 इंश्योरेंस से इंश्योर करके रखा है. हम लोग इनका HDFC इर्गोस है, उनका हेल्थ इंश्योरेंस भी हम लोग करके रखा है. इसलिए उन लोगों को मन में ये है, फिर ज़्यादा सोचने का नहीं है. लेकिन कोई हमारा यहाँ कोई स्ट्राइक नहीं है. स्ट्राइक इसलिए नहीं है कि उनको पूछने से पहले हमारा यहाँ से पूरा उनका बेनिफिट्स हम लोग दिया जाता है. उनको प्रमोशंस
हर टाइम में प्रमोशन उनको दिया जाता है। बाकी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ में हम लोग यह सब करता है। उनको भी मालूम है हम गलती करेंगे तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा नुकसान होगा, वो उसके लिए गलती करने का मौका भी उन लोग छोड़ देता है अभी तक। इसलिए तो हमें 10,000 एम्प्लॉई हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे लिए कोई भारी नहीं लगता है। ये बताता है कि एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रॉपर लीडर जैसे हो गए तब सब कुछ ठीक रहेगा, तब किसी की भी चिंता रखने की ज़रूरत नहीं होती है। सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हमने सुना कि जबलपुर करमीठा में एक नया ड्रीम प्रोजेक्ट हो रहा है इंडियन कॉफ़ी हाउस का। क्या आप उसका कुछ डेवलपमेंट या कब ओपन होने वाला है कुछ बता सकते हैं हमारे साथ? ये तो बड़ी बड़ी ये खुशी का क्वेश्चन है, क्योंकि हमारा जबलपुर में विजयनगर करमेता में हम लोग एक स्टार लेवल का होटल बना रहे हैं। उसमें 5 शादी एक साथ कर सकता है, और बाकी रिसेप्शन हॉल 3 अलग अलग से बनाया हुआ है। 100 रूम्स है। हम लोग 3.5 एकड़ में विद फुल पार्किंग फैसिलिटीज़ का साथ में हम लोग यह करने जा रहे हैं। ये हम उम्मीद कर रहे हैं कि 31 मार्च का पहले इसका उद्घाटन हो जाएगा। I want to wish you all the best for the new opening. So my next question to you is, सर हम जब हिस्ट्री के बारे में सुनते हैं तो इंडियन कॉफ़ी हाउस का एक लेगेसी है जो बोला जाता है कि इट हैज़ नर्चर्ड बिग बिग लीडर्स। इंडियन कॉफ़ी हाउस एक जगह था जहाँ पे पॉलिटिकल डिबेट्स हुए करते थे, लोग आके डिस्कशन करते थे। तो आप चाहते हैं क्या वो फिर से हो, फिर से वो लेगेसी को हम रिवाइव करें? एंड आप सोचते हैं क्या कि आजकल के बच्चों को भी इंडियन कॉफ़ी हाउस का हिस्ट्री जानना चाहिए? ज़रूर जानना चाहिए, क्योंकि इंडियन कॉफ़ी हाउस ऐसे एक इंस्टीट्यूशन है, सब ये नीचे से बड़ा ऊपर उड़ा हुआ एक इंस्टीट्यूशन है। क्योंकि 1957 में इंडिया कॉफ़ी हाउसेस चलाता था कॉफ़ी बोर्ड ने। कॉफ़ी बोर्ड ने 1957 एंड में उनको ये पूरा जितना भी ब्रांच है बंद कर दिया, और जितना एम्प्लॉई था वो पूरा रिट्रीचमेंट हो गया था। इसका बाद में ही 13 सोसाइटी बनाया था with the help of Pandit Jawaharlal Nehru and A.K. Gopalan, then labor union leader, and some of the other leaders, Subhadra Joshi, कई लोग ऐसा बहुत बड़ा लीडर्स था। लेकिन हमारा 1958 में हम लोग चालू किया था। चालू करने के बाद में इसको ग्रो करने के लिए ज़रूर तकलीफ़ उठाया, लेकिन यह तकलीफ़ जबलपुर सोसाइटी कभी महसूस नहीं किया। हमारा पूर्वजनों ने भी तकलीफ़ का साथ में इसको ऊपर उठा के आया। इत्तेफाक से मैं भी आ गया इसका अंदर। मैं मेरा ऑफिस में आने के बाद में इसका ऑफिस में आने के बाद में मेरा रुका हुआ पढ़ाई मैंने शुरू किया। पढ़ाई शुरू करने के बाद में मैं LLB तक कंप्लीट करने के बाद में मैंने सोचा, आई थॉट इट इज़ बेटर टू लिव विद द इंडियन कॉफ़ी वर्कर्स पीपल। ये उनको ऊपर उड़ाना है, उनको जितना भी तकलीफ़ें दूर करना है। हम अगर अकेले तो अगर LLB का नौकरी करेगा तो मैं खुद ऊपर उड़ेंगे, लेकिन जो साधारण जितना लोग हैं उनको करने के लिए हमको मौका नहीं मिलेगा। यही सोच के मैंने इंडियन कॉफ़ी हाउस में काम पूरा करने के लिए सोचा है। इसलिए तो हमको भी लग रहा है अभी मैंने अच्छा डिसीजन ले लिया उसी समय। इसी वजह से हमारा जितना भी करीब 10,000 एम्प्लॉई आराम से जी रहे हैं, सबको जीने के लिए एक मौका भी हमको मिल गया। और यह इसका आधार भी बन गया था 1981 में। इंडियन कॉफ़ी हाउस को सोसाइटी को NTPC इन्हें कैंटीन चलाने का मौका दे दिया। कैंटीन चलाने का मौका होने के बाद में उन्होंने उनका पूरा ये NTPC का प्लांट और उनका ऑफिस पूरा संचालन करने के लिए हम लोग को हैंड ओवर किया। हैंड ओवर करने के बाद में NMDC ने बुलाया। NMDC उनका काम देखने के बाद में NMDC ने बुलाया। NMDC बुलाने के बाद में महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने बुलाया। ऐसा फैलते गया। अभी हमारा पास 189 ब्रांचेस भी है,
189 करीब 200 गेस्ट हाउसेस भी है, करीब 10,000 एम्प्लॉई है, आराम से रह रहे हैं। सर मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि हमने ये सुना है, हमने ये देखा है कि आप अभी भी सुबह 7 बजे उठकर ऑफिस आते हैं, फिर रात तक काम करते हैं, फिर पूरे ब्रांचेस को विजिट करते हैं, मीटिंग्स के लिए ट्रैवल करते हैं। सर आप कैसे कर लेते हैं? अभी तो कोई भी होता है वो बस बोलेंगे कि नहीं मेरे से नहीं होगा, घर पे बैठेंगे, बट आप कैसे कर लेते हैं? ऐसा नहीं है, ये मैं ज़रूर सुबह 7 बजे आता है, हमारा स्टाफ जितना बजे आता है मैं भी आ जाता हूँ, और वो सब पंक्चुअल है। हम काम होने के बाद में जाता है, कभी 9 बजे जाता है रात को, कभी 7 बजे जाता है। यहाँ वैसा ऑफिस है, सबको फ्रीडम है, क्योंकि उनका फ्रीडम का साथ में काम करने के लिए उनको हमेशा ये पालन करते हुए भी चलता है। लेकिन आपने पूछा है हम जो ब्रांचेस में विजिट करता है, बाकी हम ये ब्रांचेस में विजिट करने में क्या है, एक मुद्दा ये मिलता है, सब लोगों का साथ में परिचित होता है। हम लोग स्टाफ मीटिंग करता है, जो रात को भी हो सुबह भी हो, हम लोग स्टाफ मीटिंग करता है, पूरा अपना सोसाइटी के बारे में उनको समझा देता है। ये एक सोसाइटी का डेवलपमेंट के लिए एक फ़ायदा है। सर अभी नेक्स्ट ये है कि हमने देखा है कि इंडियन कॉफ़ी हाउस बहुत सारी स्टेट्स में है, बट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जैसे कि मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद में नहीं है। तो क्या ऐसा कोई प्लान है वहाँ पे भी ओपन करने का? और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग बेंगलुरु में तो ये खुला है जी। आजकल प्रॉपर जगह मिलने में बहुत तकलीफ होता है। जो पुराने से जगह हम लोग का पास ऑक्यूपाई मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है वो कायम है, लेकिन हैदराबाद और मुंबई वगैरह में हमने कोशिश किया, हैदराबाद में कोशिश किया, इतना रेंट अपन देके अपन को इतना सिंपल फूड अपन को दे नहीं सकता जी। हमारा सैलरी और हमारा पेमेंट ये सब इसमें रिकैप्चर नहीं होता है। इसी वजह से हम लोग फ़िलहाल खोलेंगे, कई लोगों से हमने बोल के रखा है, वो ज़्यादा दूर नहीं है, वी विल ओपन। कितना अच्छा इन्फॉर्मेशन है मुंबई लोगों के लिए भी और हैदराबाद चेन्नई लोगों के लिए भी इंडियन कॉफ़ी हाउस आने वाला है। सर अभी आपने बोला था कि जब स्टार्टिंग हुआ था इंडियन कॉफ़ी हाउस जर्नी का तब 13 सोसाइटीज़ थे, बट अभी बहुत कम बचे हुए हैं। तो सर आपके हिसाब से क्या होगा रीज़न, व्हाट वाज द रीज़न दैट ऑल ऑफ देम शट डाउन बट इंडियन कॉफ़ी हाउस सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टिल वर्किंग? एक्चुअली दिस इज लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मैंने पहले बताया, एम्प्लॉयज़ का साथ में उनका लगाव कम था और प्रॉपर उनका पास फंड नहीं था। ये सब उनको मैनेज करने का तरीका उनको मालूम नहीं था। इसी वजह से तो हमारा सोसाइटी में भी पहले था, ये दिक्कतें था, लेकिन हमारा पूर्वजों ने उसको कैसे भी मैनेज किया। हमारा सोसाइटी भी करीब 20 साल बहुत मुश्किल में चल रहा था, 2 decades। I came here almost this is my 6th decade is running on, but 2 decades it was very poor condition। वो सब जगह पर होता है। इंडिया इंडिपेंडेंस होने के बाद में भी 1947 में बहुत तकलीफ में चल रहा था, अभी बहुत बढ़िया हो गया। अभी ये सब चलता रहता है, क्योंकि वो ये मैनेजमेंट के ऊपर बने रहता है ये सब। दैट टेल्स अस कि मतलब अगर डिसिप्लिन और डेडिकेशन होगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। या जी। तो सर अभी मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, जैसे कि भारत कीर्तिमान अवार्ड, एक्सीलेंस अवार्ड, बट यहाँ के लोग चाहते हैं कि आपको और भी अवार्ड्स मिले, बड़े बड़े ऑनर्स मिले। तो क्या हम देख सकते हैं आपको पद्मा अवार्ड पाते हुए? अभी कभी होगा? आपके हिसाब से आपको मिलना चाहिए? ये हम नहीं बोल सकता। ये हम भी सोचा नहीं था मेरे को भारत कीर्तिमान अवार्ड मिलेगा। हम ये नहीं सोचा था मेरे को एशियन यूनिवर्सिटी से हमको डॉक्टरेट अवार्ड करेंगे। हमको खुद बुला के बोला है, क्योंकि आपका यू सेंड योर डिटेल्स, सेंड योर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, सेंड योर क्वालिफिकेशन,
ये सब हमने भेजने के बाद में उनको उन्होंने ये सोच लिया, उन्होंने पूरा सारा डिटेल्स हमसे लेने के बाद में उन्होंने सोच लिया हमको ये आई एम एंटाइटल्ड फॉर द डॉक्टरेट, ऑनरेबल डॉक्टरेट, दैट आई गॉट इट. Plenty of other awards also we got it in our society. हमारा सोसाइटी मेरा 75th बर्थडे में 1102 लोगों को ब्लड डोनेशन दिया, एक ही साथ एक ही मंजिल के नीचे 4 घंटे में किया. यह वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में, गिनीज बुक में रिकॉर्ड हो गया. यह सब मेरा रहते हुए ये सब किया गया है. मैं अकेला नहीं है, मेरा साथ में जितना काम करने वाला पूरा इनका सहयोग से हम इतना मैं भी नहीं तो हम अकेले में कुछ नहीं कर सकता. ये पूरा विथ जॉइंट एफर्ट ऑफ द आवर एम्प्लॉयमेंट. I believe that great people should be honored and you deserve all these honors and I wish you get more and more awards and honors in the future. सर और थोड़े क्वेश्चंस बचे हैं मेरे. ये अगला सवाल ये है कि सर अभी आपने बोला था कि NTPC, NMDC ऐसे बड़े बड़े PSUs आपसे कांटेक्ट करते हैं एंड देन यू स्टार्ट द कैंटीन देयर. तो सर इनके से कनेक्शन कैसे बनाते हैं, क्योंकि इनसे कनेक्शन बनाना एक बहुत चैलेंजिंग जॉब होता है सबके लिए, क्योंकि तो ईजिली हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे लोगों से. तो आपने कैसे वो कनेक्शन बिल्ड किया? एक्चुअली NTPC में मैं भिलाई स्टील प्लांट में जब काम करता था उसी समय वहाँ का एक मैनेजर HR NTPC में इस्पात में था. वो इनको NTPC में जॉब मिला. जॉब मिलने के बाद में हमको बुलाया गया क्योंकि हम इस्पात में कैंटीन चलाता है. इसका उसी समय उनसे बात करने के बाद में वहाँ लग गया. NTPC से शुरू वहीं से हो गए. इसका अलावा भी है यहाँ P सदाशिवन नायर हमारा लीगल एडवाइसर था, उनका पहचान वाला था यहाँ का चीफ इंजीनियर, वहाँ चले गया. उनका द्वारा भी हमको ये NTPC में हमारा कैंटीन चलाने का मौका मिल गया. NTPC का काम देखते हुए NMDC वाला बुलाया. उन्होंने कई NTPC कैंटीन जाने के बाद में बोला इन लोग सक्षम है काम कैंटीन चलाने के लिए. NMDC वाला एक बाद में दूसरा NCL वाला बुलाया. ऐसा लगातार ऐसे बढ़ते गया. तो कोई ना कोई ऑफिसर पहचान में आ गया, इसलिए तो कोई दिक्कत नहीं आया, क्योंकि हमारा एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला के साथ में वो भी एक्सेप्ट कर ली. द फॉर्मूला ऑफ अगर अच्छा काम करोगे तो अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी. जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, इंडियन कॉफ़ी हाउस के बारे में अगर एक सेंटेंस में अगर आपको बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे? इंडियन कॉफ़ी हाउस ए फैमिली सोसाइटी. हम दूसरा कुछ नहीं समझता, क्योंकि इंडियन फैमिली का साथ में एक फैमिली, एक जॉइंट फैमिली. ये हमारा जो अब कल देखो होगा आप, हमारा जो जितना प्यार भरे वो यहाँ हमारा पास आया, क्योंकि ये सोसाइटी का तरीके से नहीं है, एक फैमिली मेम्बर जैसे है. हम भी मानता है उनको, उन लोग भी मानता है. इसलिए तो हमें यह सोसाइटी को आगे बढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं है. यह सोसाइटी हज़ारों साल इसी तरीके से बनते रहेगी, वही हमारा विश्वास है. हम भी यही चाहते हैं कि इंडियन कॉफ़ी हाउस और भी सालों सालों तक जाना जाए, चलता रहे. So that was my interview. So thank you so much for joining us today, and we wish you a great future. Happy birthday to you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much. This was us with OK Rajagopalan. See you all in the next week with another special guest. This is Anima Kavlan signing off.